चलिए, तो आज हमारा पहला जो टॉपिक है वो है हमारा इररिड्यूसिबल सेट ऑफ फंक्शन डिपेंडेंसीज। ठीक है, इररिड्यूसिबल सेट ऑफ फंक्शन डिपेंडेंसीज, जिसको हम बोलते हैं मिनिमल कवर भी बोलते हैं। अलग अलग बुक में अलग अलग डेफिनेशन दिए हुए हैं। क्लियर है? इररिड्यूसिबल सेट ऑफ फंक्शन डिपेंडेंसीज और मिनिमल कवर बोथ आर सेम थिंग। ठीक है, अब ये होता क्या? A set of function dependencies F is called irreducible set of function dependencies if and only if all the three conditions hold. ठीक है, मतलब मैं किसी पर्टिकुलर सेट ऑफ फंक्शन डिपेंडेंसीज को F को irreducible बोल सकता हूं अगर ये तीनों मेरी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब कंडीशंस क्या हैं? फर्स्ट कंडीशन इज RHS of every function dependency, that is right hand side of every function dependency, which is also known as the dependence, is a singleton set. That is, it contains only one attribute. Clear? Right hand side of every function dependency, that is the dependent, is a singleton set. That means RHS of every function dependency contains only one attribute. Second है no attribute can be discarded from the left hand side. No attribute can be discarded from left hand side. Left hand side को हम क्या बोलते हैं? Determinant. So no attribute can be discarded from determinant without changing the closure F plus. Without changing the closure F plus. मतलब F plus मेरा change नहीं होना चाहिए. Clear? That is, LHS of every function dependency do not contain any extraneous attribute. ठीक है? Left hand side of every function dependency do not contain any extraneous attribute. ठीक है? अब एक नया टर्म आ रहा है extraneous attribute. देखेंगे इसको भी. थर्ड है no function dependency can be discarded without changing the closure F plus. मतलब इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें मैं एट्रीब्यूट को डिस्कार्ड नहीं कर सकता, यहाँ पे मैं फंक्शन डिपेंडेंसी को ही डिस्कार्ड नहीं कर सकता। दैट मींस नो फंक्शन डिपेंडेंसी कैन बी रिडंडेंट। ठीक है, जो रिडंडेंट होंगी उनको ही हमें क्या करेंगे? डिस्कार्ड करना है, और डिस्कार्ड करेंगे तो हमारा मिनिमल कवर निकलेगा। ठीक है, तो ये तीनों का एक एग्जांपल देखते हैं। सो फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। Consider a relation capital R of A, B, C, D, E with a set of function dependencies. A determines BC, C determines D, D determines E. Clear? Consider a relation capital R of A, B, C, D, E with set of function dependencies. F is equal to A determines BC, C determines D, D determines E. Clear? Is not an irreducible set of function dependencies. Is not an irreducible set of function dependencies because we have a function dependency A determines BC, and right hand side of this function dependency is not a singleton set. It is an two attribute set. ठीक है, तो A determines BC means दो attribute हैं, एक एक attribute हमारा चाहिए। So to create the irreducible set of function dependencies, we write A determines B, A determines C, C determines D, and D determines E. क्लियर है? अब मैं इसको और रिड्यूस नहीं कर सकता, और किसी फंक्शन डिपेंडेंसी को या किसी एट्रीब्यूट को मैं डिस्कार्ड नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये हो गया मेरा पहला एग्जांपल जिसमें हमने पहली कंडीशन देखी। पहली कंडीशन क्या थी कि राइट हैंड साइड ऑफ एवरी फंक्शन डिपेंडेंसी इज एन सिंगलटन सेट। अगर कोई दो सेट है तो उसको हम क्या करेंगे? सिंगलटन बनाएंगे। सिंगलटन बनाने से क्या हो गया मेरा? ये मेरा हो गया इररिड्यूसिबल सेट। मैं इसको और रिड्यूसिबल और रिड्यूस नहीं कर सकता। क्लियर है? इसको मैं और रिड्यूस नहीं कर सकता। मैंने क्या किया? A determines BC को A determines B, A determines C लिख दिया बाय डिकम्पोजिशन रूल। ठीक है, मैंने क्या किया? राइट हैंड साइड को डिकम्पोज कर दिया। ठीक है, ये हमारा हुआ पहला एग्जांपल। मिटाऊं इसको मैं? किसी को लिखना है? मिटाऊं? यस सर। चलिए सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल देखते हैं।
consider a relation capital R of A, B, C, D, E with set of function dependencies f is equals to A determines B, AB determines C, D determines E. क्लियर है? अब ये मेरा इरेड्यूसिबल है कि नहीं है, तो पहली कंडीशन चेक करेंगे हम लोग। पहली कंडीशन क्या है? RHS ऑफ एवरी फंक्शन डिपेंडेंसी इज एन सिंगलटन सेट। तो राइट हैंड साइड में देखिए B, C, E सब सिंगलटन सेट है, मतलब पहला कंडीशन मेरा ऑलरेडी सेटिस्फाइड हो चुका है। ठीक है, अब मैं सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा हूं, नो एट्रीब्यूट कैन बी डिस्कार्डेड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड विदाउट चेंजिंग द क्लोजर। ठीक है, तो अब मैं यहां से लिख सकता हूं फ्रॉम A determines B and AB determines C, we have A determines C by pseudo transitivity। क्लियर है? pseudo transitivity से मैं B की जगह A पुट कर सकता हूं, तो A determines B, AB determines C से मैं A determines C लिख सकता हूं। that means B is an extraneous attribute। That means B is an extraneous attribute। अब extraneous attribute क्या होता है? Extraneous attribute is an attribute, मतलब एक ऐसा attribute जिसको मैं रिमूव भी कर दूं तो भी मेरी डिपेंडेंसी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब डिपेंडेंसी क्या थी? डिपेंडेंसी थी AB determines C। अब ये डिपेंडेंसी मेरी क्या हो गई? A determines C हो गई, मतलब B is extraneous attribute। ठीक है, B की मैं नीड नहीं थी। ठीक है, तो अगर मैं इस एट्रीब्यूट को रिमूव भी कर दूं तो भी मेरा क्या होगा? मेरा जो F+ है वो F+ में कोई चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, सो एन extraneous attribute is an attribute by ignoring that attribute the closure remains same। ठीक है, the closure F+ remains same, so that attribute is known as extraneous attribute। तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं एक्सट्रानियस एट्रीब्यूट को रिमूव कर सकता हूं। ठीक है, सो दिस इज नॉट एन इरेड्यूसिबल सेट। टू क्रिएट एन इरेड्यूसिबल सेट वी राइट A determines B, A determines C and D determines E। क्लियर है? अब राइट हैंड साइड में मेरा सिंगलटन सेट है, लेफ्ट हैंड साइड में मेरा सिंगलटन सेट हो गया है। ठीक है, और मैं किसी फंक्शन डिपेंडेंसी को भी डिस्कार्ड नहीं कर सकता। तो ये मेरा क्या हो गया? This is my irreducible set of function dependencies। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा सेकंड एग्जांपल। क्लियर है? मिटाऊं? किसी को लिखना है? लिखना है किसी को? सर फोटो डाल दीजिए ना, बहुत ब्लरी है। फोटो डाल देता हूं। चलिए फोटो डाल दिया मैंने। थर्ड एग्जांपल लिखते हैं। थर्ड एग्जांपल लिखते हैं। थर्ड एग्जांपल होता है कंसीडर रिलेशन कैपिटल R ऑफ A B C D E with set of function dependencies f is equals to A determines B, B determines C, A determines C, D determines E is not an irreducible set of function dependencies, is not an irreducible set of function dependencies। Why? Because अब फर्स्ट कंडीशन देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन में राइट हैंड साइड मेरा सिंगलटन हो चुका है। ठीक है, तो पहली कंडीशन मेरी जो है वो सेटिस्फाई कर रही है। सेकंड कंडीशन देखते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास कोई एक्सट्रानियस एट्रीब्यूट नहीं है। ठीक है, किसी भी एट्रीब्यूट को मैं डिस्कार्ड नहीं कर सकता, एक एक एट्रीब्यूट का ही सेट है। ठीक है,
अब थर्ड कंडीशन देखते हैं, नो फंक्शन डिपेंडेंसी कैन बी डिस्कार्डेड विदाउट चेंजिंग द क्लोजर F प्लस। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देखें फ्रॉम A determines B and B determines C, we have A determines C by ट्रांजिटिविटी। तो इस फंक्शन डिपेंडेंसी को, ये जो फंक्शन डिपेंडेंसी है A डिटरमाइन C, इसको मैं A डिटरमाइन B B डिटरमाइन C से जनरेट कर सकता हूं। क्लियर है? A डिटरमाइन B B डिटरमाइन C से मैं A डिटरमाइन C इंप्लाइड कर सकता हूं। तो मतलब A डिटरमाइन C मेरा जो है वो क्या है, वो है रिडंडेंट। ठीक है, रिडंडेंट है मतलब कि अब मैं इसको डिस्कार्ड कर सकता हूं। क्लियर है? अब डिस्कार्ड कर सकता हूं मतलब to create an irreducible set of function dependency, you can write F is equal to A determines B, B determines C, and D determines E. क्लियर है? अब इसमें से एक भी फंक्शन डिपेंडेंसी को मैं डिस्कार्ड नहीं कर सकता। क्लियर है? सो दिस इज एन irreducible set of function dependency. क्लियर है? फिर से देखते हैं, F is equal to A determines B, B determines C, A determines C, D determines E. ठीक है, फर्स्ट कंडीशन इज राइट हैंड साइड ऑफ एवरी फंक्शन डिपेंडेंसी इज इन सिंगलटन सेट, ये सिंगलटन सेट ही है। ठीक है, उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड ऑफ फंक्शन डिपेंडेंसी में भी सिंगलटन सेट हो चुका है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास कोई एक्सट्रानियस एट्रीब्यूट नहीं है। थर्ड हम देखते हैं कि फंक्शन डिपेंडेंसी को मैं डिस्कार्ड कर सकता हूं क्या। तो A डिटरमाइंस B, B डिटरमाइंस C से मैं A डिटरमाइंस C लिख सकता हूं। तो A डिटरमाइंस C को मैं यहां से क्या कर दूंगा, हटा दूंगा। ठीक है, हटाने से अब मुझे मिल रहा है A डिटरमाइंस B, B डिटरमाइंस C, D डिटरमाइंस E। ठीक है, अब एक भी फंक्शन डिपेंडेंसी को मैं डिस्कार्ड नहीं कर पा रहा। ठीक है, B को सिर्फ A डिटरमाइन कर रहा है, C को जो है सिर्फ B डिटरमाइन कर रहा है, E को है सिर्फ और सिर्फ D डिटरमाइन कर रहा है। ठीक है, तो मैं किसी को भी डिस्कार्ड नहीं कर सकता। दैट मींस दिस इज माय मिनिमल कवर और दिस इज द इररिड्यूसिबल सेट ऑफ फंक्शन डिपेंडेंसीज। क्लियर है? दिख रहा है सबको? सो दिस इज द थर्ड एग्जांपल। सो दिस इज एन इररिड्यूसिबल सेट ऑफ फंक्शन डिपेंडेंसीज। फिर इसका एक फोटो डाल देता हूं, फिर उसके बाद हम एक एग्जांपल देखेंगे। अब देखिए, आपको जो है ना अलग अलग बुक में अलग अलग बुक में अलग अलग कवर्स भी दिए हुए हैं। ठीक है, तो हम जो पढ़ते हैं वो क्या क्या पढ़ते हैं, एक हमारा इररिड्यूसिबल सेट ऑफ फंक्शन डिपेंडेंसीज जो हम अभी पढ़ रहे हैं, व्हिच इज आल्सो नोन एज मिनिमल कवर। ठीक है, तो ये इररिड्यूसिबल सेट ऑफ फंक्शन डिपेंडेंसी आपको सीजेड की बुक में मिलेगा, जो मैंने यहाँ पे आपको पढ़ाया। मिनिमल कवर आपको नवाते की बुक में मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा भी एक टर्म है जिसको बोलते हैं कैनोनिकल कवर, ये आपको मिलेगा कोर्ट की बुक में। ठीक है, और एक और मिलेगा आपको व्हिच इज नॉन रिडंडेंट कवर। क्लियर? अब ये होते क्या हैं, इररिड्यूसिबल सेट ऑफ फंक्शन डिपेंडेंसी और मिनिमल कवर, ये दोनों सेम टॉपिक है। तीनों के लिए तीनों कंडीशन मेरी सेटिस्फाई होनी चाहिए। क्लियर है? तीनों कंडीशन मेरी सेटिस्फाई हो रही है तो उसको हम बोलेंगे इररिड्यूसिबल सेट ऑफ फंक्शन डिपेंडेंसी एंड मिनिमल कवर। ठीक है, अब मैं पहले को अगर छोड़ दूं और बाकी को अगर मैं क्या करूं, बाकी दोनों को मैं क्या करूं, सेटिस्फाई करूं, तो उसको बोलेंगे हम कैनोनिकल कवर। ठीक है, दैट मींस कैनोनिकल कवर में A डिटरमाइंस B, C अगर मैं लिख रहा हूं तो ये वैलिड है। ठीक है, जबकि मिनिमल कवर में A डिटरमाइंस B, A डिटरमाइंस C मेरा अलग अलग लिखना पड़ेगा।
क्यों? क्योंकि पहली कंडीशन मुझे सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये कैनोनिकल कवर में बाकी दोनों चीजें जो है मेरी सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। अब आखिरी टर्म आता है नॉन रिडंडेंट कवर। नॉन रिडंडेंट कवर मतलब कोई भी फंक्शन डिपेंडेंसी मेरी रिडंडेंट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। रिडंडेंट नहीं होनी चाहिए मतलब सिर्फ और सिर्फ थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, ठीक है। तो थर्ड कंडीशन के लिए क्या है मेरे पास? नॉन रिडंडेंट कवर। सेकंड एंड थर्ड कंडीशन के लिए क्या है मेरे पास? कैनोनिकल कवर। और तीनों कंडीशन अगर मैं लेता हूं तो उसको बोलेंगे मिनिमल कवर एंड इररिड्यूसिबल सेट ऑफ फंक्शन डिपेंडेंसीज। क्लियर है? तो अलग अलग बुक में अलग अलग दिया है, इसलिए मैं तीनों टर्म आप लोगों को बता दे रहा हूं कि कहीं आपको बोले कि नॉन रिडंडेंट कवर क्या होता है तो आप बता सकें, ठीक है। नॉन रिडंडेंट कवर मतलब मुझे सिर्फ रिडंडेंट एफडी को रिमूव करना है। अगर मैं रिडंडेंट एफडी को रिमूव कर दे रहा हूं दैट मींस नॉन रिडंडेंट कवर मेरा मिल गया, ठीक है। और कैनोनिकल कवर अगर बोला जाए तो मेरे पास एक्सट्रोनियस एट्रीब्यूट भी नहीं होने चाहिए और रिडंडेंट एफडी भी नहीं होनी चाहिए, ये दोनों चीज नहीं होनी चाहिए तब हम बोलूंगा कैनोनिकल कवर, ठीक है। और अगर मिनिमल कवर बोलेगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। राइट हैंड साइड को भी रिड्यूस करना पड़ेगा, तो इसको जनरली हम बोलते हैं राइट रिड्यूस, क्योंकि मुझे राइट हैंड साइड को रिड्यूस करना है, सिंगलटन सेट करना है। इसको बोलते हैं लेफ्ट रिड्यूस, क्योंकि मुझे लेफ्ट हैंड साइड से मुझे क्या करना है? एक्सट्रोनियस एट्रीब्यूट को रिमूव करना है, ठीक है। और इसको बोलते हैं नॉन रिडंडेंट कवर। रिडंडेंट एफडी को मुझे क्या करना है? रिड्यूस करना है। राइट रिड्यूस मतलब राइट हैंड साइड सिंगलटन, लेफ्ट रिड्यूस मतलब लेफ्ट हैंड साइड को मुझे क्या करना है? अगर कोई पर्टिकुलर एट्रीब्यूट अगर मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में एक्स्ट्रा है तो उसको मुझे क्या करना है? रिमूव करना है, ठीक है। और थर्ड जो है वो है कोई फंक्शन डिपेंडेंसी अगर रिडंडेंट है तो मुझे उसको क्या करना है? रिमूव करना है, ठीक है। ये तीन चीजें हमारी होनी चाहिए, ठीक है। अब हमने एक टर्म पढ़ा एक्सट्रोनियस एट्रीब्यूट। तो एक्सट्रोनियस एट्रीब्यूट का हमने क्या पढ़ा कि इस एट्रीब्यूट को अगर मैं रिमूव भी कर दूं तो भी मेरे क्लोजर f+ में कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए, मेरी फंक्शन डिपेंडेंसी भी इंप्लाई होनी चाहिए जैसे इंप्लाई हो रही है। क्लियर है? तो अब ये एक्सट्रोनियस एट्रीब्यूट जरूरी नहीं है कि मुझे लेफ्ट हैंड साइड में ही मिले, राइट हैंड साइड में भी मुझे एक्सट्रोनियस एट्रीब्यूट मिल सकता है। क्लियर है? फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं a डिटरमाइंस b, ठीक है, और फिर मैं लिखूं a डिटरमाइंस bc। क्लियर है? तो a डिटरमाइंस b अगर मेरे पास पहले से दिया हुआ है और फिर मैं लिख रहा हूं a डिटरमाइंस bc, ठीक है, दैट मींस यहां पर ये मेरा क्या एक्सट्रोनियस एट्रीब्यूट है, क्योंकि यहां तो मैं पहले ही a डिटरमाइंस b लिख चुका हूं, तो a डिटरमाइंस c लिखूंगा यहां पर मैं दो बार तो नहीं लिखूंगा a डिटरमाइंस b, क्योंकि अगर मैं इसको भी अगर मैं रिड्यूस करूं तो क्या हो जाएगा? a डिटरमाइंस b a डिटरमाइंस c। अब a डिटरमाइंस b हो गया रिडंडेंट, तो मैं इसको हटा दूंगा, मेरे पास बचेगा क्या? a डिटरमाइंस b and a determines c. That means b in a determines bc is extraneous. Clear? और लेफ्ट हैंड साइड के लिए हमने पढ़ा कि a determines b दिया है, ab determines c दिया है, तो बाय जीरो ट्रांजिटिविटी मैं लिख सकता हूं a determines c. That means b in ab determines c is extraneous. ठीक है? तो ये एक्सट्रोनियस एट्रीब्यूट लेफ्ट हैंड साइड भी हो सकता है, राइट हैंड साइड भी हो सकता है। इसको मिस इंटरप्रेट मत करना कि इसमें मैंने डेफिनेशन में लिखा है कि लेफ्ट रिड्यूस में आपको एक्सट्रोनियस एट्रीब्यूट हटाना है, ठीक है। राइट हैंड साइड से जब हटा रहे हैं तो थर्ड कंडीशन से हट रहा है, क्योंकि राइट हैंड साइड में क्या कर रहे हैं? a डिटरमाइंस b a डिटरमाइंस c लिख रहे हैं, तो अब ये फंक्शन डिपेंडेंसी मेरी क्या हो रही है? रिडंडेंट हो रही है, इसको हटा रहा हूं मैं। या इन शॉर्ट में बोलूं कि a डिटरमाइंस bc में b को हटा रहा हूं मैं, तो b इज एक्सट्रोनियस। क्लियर है? तो एक्सट्रोनियस एट्रीब्यूट दोनों साइड हो सकता है। क्लियर है? चलिए अब एग्जांपल देखते हैं। तो एक क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं गिवन अ रिलेशन कैपिटल आर ऑफ ए बी सी डी विथ अ सेट ऑफ फंक्शन डिपेंडेंसीज f is equals to a determines bc, b determines c, a determines b
AB determines C and AC determines B. Find minimal cover. ठीक है, find irreducible set of function dependencies or find the minimal cover. क्लियर है? तो अब ये क्वेश्चन यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन है, यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आया हुआ है कि रिलेशन दिया है, सेट ऑफ फंक्शन डिपेंडेंसीज दिया है, आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है मिनिमल कवर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करके लिखते हैं फर्स्ट स्टेप लिखते हैं कि RHS of every function dependency is an singleton set. तो फर्स्ट कंडीशन हमें जो सेटिस्फाई करनी है कि RHS of every function dependency is an singleton set. तो अब इसको पहले क्या लिखना पड़ेगा? F is equal to A determines BC ही मेरा एक इकलौता ऐसा था जो डबल सेट था, तो इसमें लिखूंगा A determines B, A determines C, A determines BC को A determines B, A determines C लिखूंगा। ठीक है, फिर लिखूंगा B determines C, AB determines C and AC determines D। क्लियर? सो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया? राइट रिड्यूस किया, राइट साइड में सबको मैंने क्या कर दिया? सिंगलटन सेट कर दिया। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे? लेफ्ट रिड्यूस करना चाहेंगे। ठीक है, अब हम चेक कर रहे हैं, we check whether there is an extraneous attribute in LHS of any function dependency। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा? लेफ्ट साइड में चेक करूंगा कि कोई एक्सट्रानियस एट्रीब्यूट तो नहीं है। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं, हम लिखते हैं फ्रॉम A determines B and AB determines C, we have A determines C by pseudo transitivity। ठीक है, by pseudo transitivity। So B in AB determines C is an extraneous attribute। ठीक है, so F is equal to, so we can discard the extraneous attribute। After discarding the extraneous attribute, F is equal to A determines B, A determines C, B determines C। अब AB determines C से मैंने B को क्या कर दिया? डिस्कार्ड कर दिया। A determines C अब लिखना है, क्या लिखूंगा मैं? A determines C और फिर आखिरी में है AC determines B। अगेन थर्ड स्टेप में आते हैं, फिर लिखते हैं फ्रॉम A determines C and AC determines B, we have A determines B। So C in AC determines B is an extraneous attribute। क्लियर है? A determines C, AC determines D, तो C की जगह मैं A पुट कर दूंगा, तो ये हो जाएगा A determines D, that means C in AC determines D is an extraneous attribute। So after discarding extraneous attribute, what are the function dependencies? A determines B, A determines C, B determines C, A determines C and A determines B। तो देखिए मैंने राइट रिड्यूस भी कर दिया, मैंने लेफ्ट रिड्यूस भी कर दिया। ठीक है, राइट रिड्यूस लेफ्ट रिड्यूस करने के बाद अब मेरे पास जो फंक्शन डिपेंडेंसीज बची हैं, अब मुझे चेक करना है कि कोई फंक्शन डिपेंडेंसी मैं डिस्कार्ड कर सकता हूं। तो आप देखते हैं A determines C, A determines C दो बार दिया। ठीक है, तो उसको क्या कर देते हैं? एक बार लिख देते हैं। ठीक है, तो फोर्थ स्टेप में लिखते हैं A determines C, we can write A determines C only once, so F is equal to
A determines B, A determines C, B determines C, और हो जाएगा आपका A determines D। ठीक है, फिर फिफ्थ स्टेप में आते हैं, from A determines B and B determines C, we have A determines C, क्लियर है, A determines B, B determines C से मुझे A determines C मिल रहा है, ठीक है, so A determines C, A determines C is redundant FD, redundant FD, so we can discard it from F. So F is equal to A determines B, B determines C, and A determines B. ठीक है, A determines B, B determines C से A determines C मिल रहा है, तो जो A determines C implied हो जा रहा है दो जगह से, तो वो redundant है, A determines C को मैं हटा दूंगा, ठीक है, हटाने के बाद मेरे पास क्या बचा है, A determines B, B determines C, A determines D। अब देखते हैं B को सिर्फ A डिटरमाइन कर रहा है, C को सिर्फ B डिटरमाइन कर रहा है, D को सिर्फ A डिटरमाइन कर रहा है, क्लियर है, मतलब मैं और किसी को रिड्यूस नहीं कर सकता, मेरा राइट रिड्यूस भी हो चुका है, मेरा लेफ्ट रिड्यूस भी हो चुका है, और किसी फंक्शन डिपेंडेंसी को मैं डिस्कार्ड नहीं कर सकता, ठीक है, सो दिस इज द मिनिमल कवर, क्लियर है, सो दिस इज द रिक्वायर्ड मिनिमल कवर, क्लियर है, किसी को डाउट है तो मैं फिर से बताने के लिए तैयार हूं, एनी डाउट, एनी डाउट। सबसे पहला स्टेप आपको जो करना है वो क्या करना है कि जो क्वेश्चन दिया है उसमें सबसे पहले तो राइट हैंड साइड को सिंगलटन सेट करना है, तो राइट हैंड साइड सिंगलटन सेट होगा तो पहला कंडीशन मेरा सेटिस्फाई हो जाएगा, फिर मुझे चेक करना है कि लेफ्ट साइड में किसी एट्रिब्यूट को मैं डिस्कार्ड कर सकता हूं, तो उसके लिए आपको सूडो ट्रांजिटिविटी का हेल्प लेना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद मैं चेक करूंगा कि किसी फंक्शन डिपेंडेंसी को मैं डिस्कार्ड कर सकता हूं क्या, तो उसके लिए मेनली आपका यूज होगा ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी, तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी से मेरा क्या होगा, राइट साइड पर सॉरी किसी फंक्शन डिपेंडेंसी को हो सकता है कि मैं डिस्कार्ड कर पाऊं, ठीक है, तो थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए आपको ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी याद रखनी पड़ेगी, सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए जनरली हमारे पास यूज होना चाहिए सूडो ट्रांजिटिविटी, ठीक है, और फर्स्ट कंडीशन तो डायरेक्टली आप डिकम्पोजिशन लगा लेंगे तो राइट हैंड साइड आपको सिंगलटन सेट मिल जाएगा, क्लियर है, क्लियर है, मिटाऊं फोटो खींच के डालूं इसको, यस सर, फोटो भेज दो। चलिए फोटो खींच के मैंने डाल दिया है, तो मैं इसको मिटा रहा हूं, उसके बाद देखते हैं एक और क्वेश्चन, बना पाएंगे आप लोग क्वेश्चन, चलिए पहले एक क्वेश्चन गेट का देख लेते हैं, उसके बाद फिर आप लोगों को मैं एक क्वेश्चन दूंगा जिसको आप प्रैक्टिस करेंगे, क्लियर है, गेट में क्वेश्चन आया हुआ है कि कंसीडर अ रिलेशन कैपिटल आर ऑफ VWXYZ, VWXYZ and set of function dependencies F is equals to V determines W, W determines X, Y determines V, X
ठीक है, आपको दिया हुआ है रिलेशन, आपको दिया है सेट ऑफ फंक्शन डिपेंडेंसीज। अब आप पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इररिड्यूसिबल सेट ऑफ फंक्शन डिपेंडेंसीज। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज V determines W, V determines X, Y determines V, Y determines Z. Option B, V determines W, W determines X, Y determines P, and Y determines Z. Option C, V determines W, V determines X, Y determines P, Y determines X, Y determines Z, and option D, V determines W, W determines X, Y determines X, Y determines Z। एक मिनट गलत लिख दिया हूं लग रहा है, तो एक मिनट देख लेता हूं मैं, PDF होगा मेरे पास। Y determines V, Y determines X। ठीक है, V determines W, V determines X, Y determines V, Y determines Z। V determines W, W determines X, Y determines V, Y determines Z। V determines W, V determines X, Y determines V, Y determines X, Y determines Z। फिर है V determines W, W determines X, Y determines V, Y determines X, Y determines Z। ठीक है, और ये पूछा गया डेट 2017 में। बनेगा क्वेश्चन, बनेगा कि मैं बनाऊं? चलिए कुछ लोगों के तो आंसर आ गए हैं। आप क्या कीजिए, इसका इररिड्यूसिबल सेट निकालिए। तो पहले तो लिखते हैं F is equals to P determines W, P W determines X। अब ये राइट हैंड साइड में सिंगल डिफरेंस सेट करना है, तो इसका लिखेंगे हम Y determines V, Y determines X, और फिर आखिरी में है Y determines Z। क्लियर? अब V determines W, VW determines X, बाय सूडो ट्रांजिटिविटी V determines X लिख सकता हूं मैं, यहां पे कर दिया हमने V determines X। ठीक है, अब V determines W, V determines X, Y determines V, Y determines X, Y determines Z। ठीक है, राइट रिड्यूस भी हो चुका मेरा, लेफ्ट रिड्यूस भी मेरा हो चुका है। ठीक है, ये दोनों y की जगह v है ना, y ना दिख रहा हो। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि किसी फंक्शन डिपेंडेंसी को हम डिस्कार्ड कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो अब यहां देखते हैं हम w को कौन डिटरमाइन कर रहा है, v, और कोई डिटरमाइन नहीं कर रहा है। x कौन डिटरमाइन कर रहा है, v। ठीक है, x को डिटरमाइन y भी कर रहा है, x डिटरमाइन v भी कर रहा है। अब y डिटरमाइंस v, y determines v, v determines x। ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी हो गई, y determines v, v determines x। तो इससे मैं y determines x को हटा सकता हूं, हट गया। ठीक है, तो x को जो दो डिटरमाइन कर रहे थे उसमें से मैंने क्या कर दिया, एक डिटरमाइन को हटा दिया मैंने। क्यों? क्योंकि वो इनडायरेक्टली डिटरमाइन हो रहा था। अब v को एक ही डिटरमाइन कर रहा है, z को एक ही डिटरमाइन कर रहा है। ठीक है, तो v determines w, v determines x, y determines v, y determines z। कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है, ऑप्शन ए। क्लियर है? क्लियर है? बनेंगे क्वेश्चंस, बनेंगे क्वेश्चंस। जब भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको राइट रिड्यूस करना है, राइट हैंड साइड में सारे सिंगल टर्न करने हैं।
फिर लेफ्ट साइड में आप सिंगलटन करने की कोशिश करेंगे, हो सकता है कि सिंगलटन हो जाए, हो सकता है ना भी हो, जरूरी नहीं है कि सारे सिंगल एट्रीब्यूट ही सिंगल एट्रीब्यूट को डिटरमाइन करें, कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट तो सिंगल एट्रीब्यूट को डिटरमाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी एट्रीब्यूट को मैं लेफ्ट हैंड साइड से रिड्यूस कर सकता हूं तो हम रिड्यूस करेंगे बाय यूजिंग सूडो ट्रांजिटिविटी रूल, ठीक है। और उसके बाद हम चेक करेंगे कि कोई फंक्शन डिपेंडेंसी मेरी डिस्कार्ड हो पा रही है कि नहीं। तो फंक्शन डिपेंडेंसी यहाँ पे डिस्कार्ड हो पा रही थी, तो मैंने क्या किया, उसको भी डिस्कार्ड कर दिया, तो मुझे मिल रहा है ये पर्टिकुलर ऑप्शन ए मुझे करेक्ट मिल जा रहा है। क्लियर है? बनेंगे क्वेश्चंस? बनेंगे क्वेश्चंस? यस सर। दो एक क्वेश्चन बनेगा? दो एक क्वेश्चन? सर ये क्वेश्चन बनाइए, गेट की तैयारी कर रहे हैं ना आप? तो एक स्पेशल क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों को मैं। कंसीडर a relation R of A, B, C with set of function dependencies F is equal to A determines BC, B determines CA, C determines AB. Which of the following is a canonical cover? Which of the following is a canonical cover of this? Which of the following is a minimal cover? So option A is A determines B, B determines C, C determines A. Option B is A determines C, B determines A, C determines B. Option C, A determines B, B determines C, C determines B, and option D, A determines B, option D, B determines A, B determines, B determines A, C determines B, C determines A. कौन सा आएगा बताइए? क्वेश्चन दिख रहा है सबको? बनेगा? सर ए और बी दो ऑप्शन है क्या? हाँ, ये MSQ का क्वेश्चन दिया है मैंने आपको। MSQ का क्वेश्चन है, इसका मतलब समझ में आ रहा है आप लोगों को कि एक कंक्लूजन जो आप लोगों को समझ में आना चाहिए या जो मैं दिखाना चाह रहा था कि कोई जरूरी नहीं है कि एक ही इररिड्यूसिबल सेट मिले या एक ही मिनिमल कवर मिले, एक से ज्यादा भी मिनिमल कवर मिल सकते हैं। क्लियर है? एक से ज्यादा मिनिमल कवर भी मिल सकते हैं। तो अब इसमें देखते हैं, पहले तो हम राइट हैंड साइड को सिंगलटन सेट करते हैं। तो F is equal to A determines B, A determines C, B determines C, B determines A, C determines A, C determines B. क्लियर है? ये मैंने क्या किया, राइट हैंड साइड को सिर्फ और सिर्फ सिंगलटन सेट किया, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड मेरा ऑलरेडी सिंगलटन सेट है, तो कोई एक्सटर्नल एट्रीब्यूट का सवाल ही नहीं उठता। सेकंड कंडीशन फॉलो हो ही रही है। अब मैं चेक करता हूं कि किसी फंक्शन डिपेंडेंसी को मैं डिस्कार्ड कर सकता हूं कि नहीं। तो हम देखते हैं, A डिटरमाइंस B, B डिटरमाइंस C, A डिटरमाइंस C मिल जाएगा। मैं क्या कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया, ठीक है। उसका मैं चेक कर रहा हूं, देखते हैं कि B डिटरमाइंस C, C डिटरमाइंस A, ठीक है। B डिटरमाइंस C, C डिटरमाइंस A, सो B डिटरमाइंस A बाय ट्रांजिटिविटी, इसको मैं डिस्कार्ड कर सकता हूं। क्लियर है?
उसके बाद हम देखते हैं C determines A determines B, ठीक है, C determines A determines B, बाई ट्रांजिटिविटी C determines B, तो मैं इसको भी डिस्कार्ड कर सकता हूं। क्लियर है? तो मेरे पास बचा क्या, मेरे पास बचा जो है वो है A F is equal to A determines B, B determines C and C determines A। क्लियर है? अब B को सिर्फ एक ही डिटरमाइन कर रहा है, C को एक ही डिटरमाइन कर रहा है, A को भी एक ही डिटरमाइन कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन आया मुझे A मिल गया, ठीक है। लेकिन यहीं पे हम नहीं रुक सकते, अभी हम दूसरा सॉल्यूशन भी पॉसिबल है। दूसरा सॉल्यूशन क्या है कि A डिटरमाइंस B, B डिटरमाइंस C से मैंने A डिटरमाइंस C हटा दिया था, ठीक है। अगर मैं इसको ही पहले हटा दूं, A डिटरमाइंस B को हटा दूं, तो B को कौन कौन डिटरमाइन कर रहा है? B को जो है एक काम करूंगा, फिर से लिखता हूं, A determines B, A determines C, B determines C, B determines A, C determines A, C determines B। क्लियर? अब A determines B मेरा रिडंडेंट है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए मैं क्या करूंगा, A determines B को बाकी सबसे मैं इंप्लाई करके देखता हूं अगर हो रहा है कि नहीं। तो B को मेरा A डिटरमाइन कर रहा है, तो B को और कौन कौन डिटरमाइन कर रहा है? तो B को C से डिटरमाइन कर सकता हूं, C को किससे डिटरमाइन कर सकता हूं मैं? A से। तो A डिटरमाइन C, C डिटरमाइन B मिल गया। तो A डिटरमाइन C, C डिटरमाइन B से A डिटरमाइन B मिल जाएगा, मतलब मैं इसको हटा सकता हूं। क्लियर है? हटा सकता हूं, उसको हटा दिया मैंने। उसके बाद मैं देखता हूं कि B डिटरमाइन C, ठीक है, C को मेरा कौन कौन डिटरमाइन कर रहा है? तो C को जो है एक तो A डिटरमाइन कर रहा है, एक तो B डिटरमाइन कर रहा है, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं कि B डिटरमाइन C को मैं डिस्कार्ड कर सकता हूं क्या? तो अदर एडजेस से तो मैं देखते हैं, तो अब यहां पे देखेंगे कि B डिटरमाइन C मुझे क्या करना है, डिस्कार्ड करना है। तो डिस्कार्ड करने के लिए C डिटरमाइन B डिटरमाइंस A यहां मिल रहा है, A डिटरमाइंस C यहां मिल रहा है, ठीक है। तो B डिटरमाइंस A, A डिटरमाइंस C से मैं B डिटरमाइंस C इंप्लाई कर सकता हूं, तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, हट जाएगा। क्लियर है? उसके बाद A को कौन डिटरमाइन कर रहे हैं? एक तो B और एक C, ठीक है। अब मैं चेक कर रहा हूं कि मैं दोनों में किसी एक को डिस्कार्ड कर सकता हूं क्या, ठीक है। तो B डिटरमाइंस A, तो B डिटरमाइंस A और कहीं से इंप्लाई हो रहा है क्या अभी इस पर्टिकुलर फंक्शन डिपेंडेंसीज में? तो मैं C डिटरमाइंस A डिस्कार्ड कर सकता हूं क्या? देखिए यहां से C डिटरमाइंस B, B डिटरमाइंस A, C डिटरमाइंस B, B डिटरमाइंस A से A डिटरमाइंस C डिटरमाइंस A मिल जाएगा। ये हट गया मेरा, तो बचा क्या? बचा मेरे पास 3, F is equal to A डिटरमाइंस C, B डिटरमाइंस A and C डिटरमाइंस B। क्लियर है? अब C को एक डिटरमाइन कर रहा है, A को भी एक डिटरमाइन कर रहा है और B को भी एक डिटरमाइन कर रहा है, ठीक है। तो A डिटरमाइंस C, B डिटरमाइंस A, C डिटरमाइंस B, ये भी मेरा क्या हो गया, मिनिमल कवर हो गया। क्लियर है? तो दो मिनिमल कवर इसके पॉसिबल हैं। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा एमएसक्यू क्वेश्चन। अब अगर एमएसक्यू क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में आया तो आप बैठ के बनाते रहेंगे क्या ऐसा? इससे तो टाइम ज्यादा खप जाएगा। 2 मिनट का अगर समय मिल रहा है आपको तो 2 मिनट में तो बन पाएगा क्या? नहीं बन पाएगा ना? कि बन पाएगा? नहीं बन पाएगा सर। तो अब आप लोग क्या कीजिए, आप लोग ऐसे क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आए तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, f प्लस निकालिए। ये f इसी का हमें दिया है, आप निकालिए f प्लस। अगर f प्लस में मुझे पूरा एट्रिब्यूट मिल जा रहा है, मुझे पूरे फंक्शन डिपेंडेंसीज मिल जा रहे हैं, दैट मींस वो उसका मिनिमल कवर है। ठीक है, तो आप डायरेक्टली निकालिए f प्लस। तो अगर मैं यहाँ पे f प्लस निकालूं, इससे इसको अगर मैं f कंसिडर करूं, अगर मैं f प्लस निकालूं तो f प्लस इज इक्वल टू, अब 3 डिटरमिनेंट है a b and c, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों निकालना पड़ेगा। a प्लस इक्वल टू a से मुझे b मिल जाएगा, b से मुझे c मिल जाएगा, c से मुझे a मिल जाएगा। a प्लस इक्वल टू a b c मिल गया। क्लियर है? फिर b प्लस इक्वल टू b, b से मुझे c मिल जाएगा, c से मुझे a मिल जाएगा। b भी मेरी की हो गई। ठीक है, फिर c प्लस निकाल रहा हूं, c प्लस इक्वल टू c, c से मुझे क्या मिलता है a,
ए से मुझे क्या मिल रहा है बी। क्लियर है? अब यहां से मैं देखूं कि ए डिटरमाइन बीसी, ए प्लस में बीसी मिल रहा मतलब ए डिटरमाइन बीसी है, फिर बी डिटरमाइन सी है, तो बी प्लस में मुझे सी ए मिल रहा है मतलब बी डिटरमाइन सी ए भी है, फिर सी प्लस में निकाल रहा हूं सी ए बी, तो सी डिटरमाइन सी ए भी मिल रहा है। ठीक है, मतलब ये मेरा क्या हो गया है, मिनिमल कवर हो चुका है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसका निकालेंगे, तो f प्लस इज इक्वल टू, या हमने निकाला a प्लस इज इक्वल टू a, फिर a से मुझे c मिल जाएगा, c से मुझे b मिल जाएगा, सारे मिल गए। b प्लस इज इक्वल टू b, b से मुझे a मिल जाएगा, a से मुझे c मिल जाएगा, सभी सारे मिल गए। c प्लस इज इक्वल टू c, और c से मुझे क्या मिल रहा है, b मिल रहा है, b से मुझे क्या मिल रहा है, a मिल रहा है। अगेन सारे मिल गए, सारे मिल गया मतलब ये भी मेरा क्या हो गया, कैनोनिकल कवर हो गया। ठीक है, थर्ड अगर हम देखें, हो सकता है थर्ड भी हमारा एग्जाम कैनोनिकल कवर मिले। a डिटरमाइंस, मैंने क्या निकाला, a डिटरमाइंस तो a प्लस इक्वल टू a, तो a से मुझे क्या मिल रहा है, b मिल जा रहा है, b से मुझे c मिल जा रहा है, सारे एट्रिब्यूट मिल गए। ठीक है, फिर मैं निकाल रहा हूं b प्लस इक्वल टू b, b से मुझे क्या मिल जा रहा है, c से मुझे क्या मिल रहा है, b मिल रहा है, तो b प्लस इक्वल टू bc। ठीक है, b प्लस इक्वल टू bc, देखिए b प्लस में b मैंने निकाला और b से मैं क्या कर रहा हूं, c डिटरमाइन कर पा रहा हूं। ठीक है, तो b प्लस इक्वल टू ओनली bc, फिर मैं c प्लस निकाल रहा हूं, तो c प्लस इक्वल टू c, c से मुझे क्या मिल रहा है, b मिल रहा है, b से मुझे c मिल रहा है, यही हो गया। तो b डिटरमाइन c मिल रहा है, c डिटरमाइन b मिल रहा है, c डिटरमाइन a मुझे नहीं मिल रहा है, a नहीं मिल रहा है मतलब ये मेरा नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे आप निकालेंगे, यहाँ पर b और c ही मिल रहा है डिटरमिनेंट, तो b प्लस और c प्लस निकालूंगा, a प्लस तो मुझे मिल ही नहीं रहा है, तो a प्लस नहीं मिल रहा है मतलब ये मेरा ऑलरेडी कैनोनिकल कवर नहीं है। क्लियर है? तो दो कैनोनिकल कवर मिल रहा है। क्लियर है? तो अब ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए, इससे पहले भी जो क्वेश्चन मैंने कराया, मैंने सिंपल था करके सिंपल सा मैंने आपको रिड्यूसिबल सेट निकाला, एक ही आंसर मिल रहा है। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि एक ही आंसर मिले, मिनिमल कवर में दो मिनिमल कवर पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने क्या दिया है आप लोगों को, एमएसक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, और बनाना है तो मैं क्या करना पड़ेगा, मुझे दिया मिनिमल कवर है लेकिन मैं मिनिमल कवर का क्या करूं, f प्लस निकालता हूं, तो मुझे ओरिजिनल सेट मिल जाना चाहिए। क्लियर, ओरिजिनल सेट मिल जा रहा है मतलब वो उसका मिनिमल कवर है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। f प्लस मतलब जितने से जितने ज्यादा फंक्शन डिपेंडेंसी मुझे मिल रही है मैं वो पूरी जनरेट कर रहा हूँ। क्लियर है, और मिनिमल कवर मतलब मैं जितने से ज्यादा मिनिमाइज कर सकता हूँ उसको मैं क्या करूंगा, मिनिमाइज करूंगा, उल्टा है उसका। ठीक है, मिनिमाइज कर रहा हूँ मतलब मैं कुछ फंक्शन डिपेंडेंसी को डिस्कार्ड कर रहा हूँ, दूसरे से मैं एम्प्लाई कर रहा हूँ मतलब उसको रिडंडेंट समझ के मैं उसको क्या कर रहा हूँ, डिस्कार्ड कर दे रहा हूँ। ठीक है, और f प्लस निकाल रहा हूँ मतलब मैं सारी के सारी रिडंडेंट फंक्शन डिपेंडेंसी को भी जनरेट कर रहा हूँ। क्लियर है, अब ये दोनों क्यों निकालते हैं ये हम लोग नॉर्मलाइजेशन में पढ़ेंगे। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन के एल्गोरिथम में पहला जो एल्गोरिथम का जो स्टेप रहता है वो यही रहता है। ठीक है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म या थर्ड नॉर्मल फॉर्म में निकालते हैं, तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में हम निकालते हैं f प्लस। ठीक है, और थर्ड नॉर्मल फॉर्म में हम निकालते हैं मिनिमल कवर। ठीक है, तो ये जो हम अभी बेसिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग सेकंड और थर्ड नॉर्मल फॉर्म के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे चल के हम लोग को कैसे सेकंड नॉर्मल फॉर्म में जनरेट करना है, कैसे थर्ड नॉर्मल फॉर्म में जनरेट करना है, वो निकालने आना चाहिए। मिटाओ इनको, मैं मिटाऊं की फोटो खींच के भेजूं उसका, मेरे ख्याल से सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, बन जाना चाहिए आपसे, फिर मैं आप लोगों को फोटो खींच के भेज दे रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन बनेंगे, एक और क्वेश्चन दूं। चलिए कुछ क्वेश्चन मैं देता हूं आप लोगों को, आप लोग बनाने की कोशिश कीजिएगा। चलिए एक क्वेश्चन है,
determines BC, CD determines E, E determines C, D determines A, E, H, A, B, H determines BD, and BH determines BC. Find the minimal cover. Find minimal cover. Clear? Second question जो आप लिख लीजिए for एक क्वेश्चन जो है मैंने आप लोगों को एक पीडीएफ दिया था नॉर्मलाइजेशन का, उसमें दिया हुआ है, उसमें भी दो सॉल्यूशन पॉसिबल है, दोनों सॉल्यूशन सॉल्व करके डाला हुआ है उसमें, ठीक है। किसी को उसमें डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। एक सॉल्यूशन का पीडीएफ मैंने आप लोगों को दिया था नॉर्मलाइजेशन का, अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं आप लोगों को यहाँ प्रेजेंट करके भी दिखा सकता हूँ। देखिए ये वाला क्वेश्चन हमने अभी बनाया थोड़ी देर पहले, जिसमें हमको 3 इररेड्यूसिबल सेट मिल रहे थे, सॉरी 3 ही हमको क्या मिल रहे थे, सॉल्यूशन मिल रहे थे, 3 फंक्शन डिपेंडेंसीज जनरेट हो रही थी। यहां तक खत्म हो गया, देखिए A डिटरमाइंस B, B डिटरमाइंस C, A डिटरमाइंस D। उसके बाद एक दूसरा क्वेश्चन है B डिटरमाइंस C वाला, और इसके दो सॉल्यूशन पॉसिबल हैं। एक सॉल्यूशन ये है, ये आपका खत्म हो रहा है यहाँ पर, और यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, सेकंड सॉल्यूशन मिल रहा है, जो सेकंड सॉल्यूशन खत्म हो रहा है यहाँ पर। तो पहले सॉल्यूशन में 5 स्टेप लग रहे हैं, सेकंड सॉल्यूशन में 4 स्टेप लग रहे हैं, और दोनों आंसर देखिए, आप देखेंगे तो अलग अलग है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करके देखिएगा, ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन, ये यूनिवर्सिटी का ही क्वेश्चन आया हुआ है कि कंसीडर रिलेशन आर ऑफ ABCDEFGHIJ एंड सेट ऑफ फंक्शन डिपेंडेंसीज, और फंक्शन डिपेंडेंसीज दिया है, और फिर बोलता है इज दिस एन इररेड्यूसिबल सेट। तो आपको चेक करना है कि इररेड्यूसिबल सेट है कि नहीं है, ठीक है। और फिर पूछ रहा है कि व्हाट आर द कैंडिडेट कीज। तो कैंडिडेट की निकालना मैं पहले ही आपको सिखा दिया हूँ, आप बना के देखेंगे इसको भी, ठीक है। तो इसमें देखिए राइट हैंड साइड तो हमारा सब सिंगलटन सेट मिल रहा है, लेफ्ट हैंड साइड जो है हमको ABD मिल रहा है, AB मिल रहा है, और बाकी सब, हाँ बाकी में भी देखिए BC है, CJ डिटरमाइंस I है। तो यहाँ डायरेक्टली दिख रहा है, देखिए C डिटरमाइंस J, CJ डिटरमाइंस I, तो C डिटरमाइंस I लिख सकता हूँ, मतलब J इज एक्सट्रोनियस, ठीक है। J इज एक्सट्रोनियस मतलब ये मेरा क्या है, इररेड्यूसिबल सेट नहीं है। तो यहाँ पे देखिए आंसर भी लिखा हुआ है, दिस इज नॉट एन इररेड्यूसिबल सेट, ठीक है। उसके बाद की निकालने आना चाहिए। की का तो मैंने आप लोगों को पहले ही फंडा बताया कि आप सुपर की निकालिए, सुपर की से आप क्या कीजिए, मिनिमाइज कीजिए और निकालिए कैंडिडेट की, ठीक है। एसेंशियल एट्रीब्यूट निकालिए, एसेंशियल एट्रीब्यूट का पहले आप क्लोजर निकाल के देखिए, और फिर उसको आप बना के देखेंगे, क्लियर है। तो ये नोट्स मैंने पहले ही आप लोगों को दे रखे हैं। अभी आप लोग जो है ये वाला क्वेश्चन बनाइए फटाफट, ये वाला क्वेश्चन बनाइए और चैट बॉक्स में इसका आंसर मुझे दीजिए, तब तक मैं अटेंडेंस ले लेता हूं। 9 FD बच रहे हैं। 9 फंक्शन डिपेंडेंसी नहीं बनेगी इसमें, आप पूरा नहीं कर रहे हो। फिर आप देखिए यहाँ पर F is equal to A determines B, A determines C, CD determines E, E determines C, D determines A, D determines E, D determines H, A, B, H determines B, A, B, H determines D, और बाकी मैं यहाँ लिख रहा हूँ BH determines B and BH determines C। तो पहले मैंने क्या किया, राइट हैंड साइड भी पढ़ दिया सिंगलटन सेट, क्लियर है, दिख रहा है सबको? यस सर, है ना, राइट हैंड साइड पे सबको मैंने कर दिया सिंगलटन सेट, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, लेफ्ट रिड्यूस करना है, मतलब लेफ्ट साइड में कोई फंक्शन डिपेंडेंसी मेरी, वैसे किसी एट्रीब्यूट को मैं डिस्कार्ड कर सकता हूँ, तो उसको मैं क्या करूँगा, डिस्कार्ड करने की कोशिश करूँगा। अब देखते हैं यहाँ पर
D डिटरमाइंस H दिया है और यहाँ पे दिया है DH डिटरमाइंस B, मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ D डिटरमाइंस B, इसको भी मैं लिख सकता हूँ D डिटरमाइंस C, लिख सकता हूँ, है ना, क्योंकि D डिटरमाइंस H है तो H की जगह मैं D पुट कर सकता हूँ, तो ये हो जाएगा D डिटरमाइंस B और ये हो जाएगा D डिटरमाइंस C। ये दोनों मेरा क्या हो गया, हट गया, इनके बदले अब क्या आ गया, ये आ गया, ठीक है। और राइट लेफ्ट हैंड साइड में क्या देखिए यहाँ पे CD है, तो मैं यहाँ पे C को हटा दूं या तो मैं D को हटा दूं, तो यहाँ पे देखिए D डिटरमाइंस E दिया है, तो D डिटरमाइंस E दिया मतलब C मेरा एक्सट्रानियस है, इसको हटा दूंगा, फिर D डिटरमाइंस E है, तो इस पूरी की पूरी फंक्शन डिपेंडेंसी को मैं डिस्कार्ड कर सकता हूँ, है ना, रिडंडेंट हो गया, तो उसको मैंने हटा दिया, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं AB H डिटरमाइंस B, तो ये मेरा तो ट्रिवियल हो गया, है ना, लेफ्ट हैंड साइड इज द राइट हैंड साइड इज द सुपरसेट ऑफ राइट हैंड साइड, तो मैं इसको तो डायरेक्टली हटा सकता हूँ, क्लियर है। उसके बाद AB H डिटरमाइंस B, तो यहाँ पे देखिए A डिटरमाइंस H कहीं मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, चल ठीक है। A डिटरमाइंस B मिल रहा है, AB H डिटरमाइंस B मिल रहा है, तो D की जगह मैं A पुट कर सकता हूँ, तो इसको भी रिड्यूस करके मैं क्या कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ कि H डिटरमाइंस B, क्लियर है। तो A डिटरमाइंस B और AB H डिटरमाइंस B में से मैं आ जाएगा AH डिटरमाइंस B, B को मैं यहाँ से हटा सकता हूँ, B इज एक्सट्रानियस, क्लियर है। अब ये हो गया मेरा AH डिटरमाइंस B, अब मैं इसमें A रिमूव कर सकता हूँ क्या, H डिटरमाइंस B कहीं से मिल रहा है क्या मुझे, तो D को कौन कौन डिटरमाइन कर रहा है, D को सिर्फ और सिर्फ A डिटरमाइन कर रहा है, तो ना मैं यहाँ से A हटा सकता हूँ ना मैं यहाँ से H हटा सकता हूँ। अब ये बस देखिए कि H को कौन डिटरमाइन कर रहा है, तो D डिटरमाइन कर रहा है, A को कौन डिटरमाइन कर रहा है, तो वो भी D डिटरमाइन कर रहा है, ठीक है, मतलब AH में से मैं किसी को भी हटा नहीं सकता, ठीक है। तो AH डिटरमाइंस B मेरा फाइनल हो गया, ठीक है, इसको और मैं रिमूव नहीं कर सकता, ठीक है। अब उसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, उसके बाद मैं क्या कर रहा हूं कि किसी फंक्शन डिपेंडेंसी को मैं रिमूव कर सकता हूं क्या, ठीक है। तो अब फंक्शन डिपेंडेंसी को रिमूव करने के लिए देखते हैं B को कौन कौन डिटरमाइन कर रहा है, B को A डिटरमाइन कर रहा है, B को D डिटरमाइन कर रहा है, क्लियर है। तो B को A डिटरमाइन कर रहा है, B को D भी डिटरमाइन कर रहा है, तो अगर मैं A और D में से किसी को हटा सकता हूँ क्या, D डिटरमाइंस A मिल रहा है मुझे, ठीक है। तो D डिटरमाइंस A डिटरमाइंस B, तो D डिटरमाइंस B मिल जाएगा, D डिटरमाइंस A डिटरमाइंस B, तो D डिटरमाइंस B मिल गया, हटा देता हूँ मैं इसको, ठीक है। फिर D डिटरमाइंस E डिटरमाइंस C, तो D डिटरमाइंस E डिटरमाइंस C से D डिटरमाइंस C मिल जाएगा, इसको भी मैंने हटा दिया, क्लियर है। अब और कोई हटा सकता हूं क्या मैं, B को A की डिटरमाइन कर रहा है, C को भी दो डिटरमाइन कर रहा है, एक तो A और एक है E, ठीक है। तो आप देखिए E को कौन डिटरमाइन कर रहा है, D, और कोई डिटरमाइन नहीं कर रहा है, ठीक है। A को कौन डिटरमाइन कर रहा है, वो भी है D, तो मैं इन दोनों फंक्शन डिपेंडेंसी को मैं रिड्यूस नहीं कर सकता। फिर A को कौन डिटरमाइन कर रहा है, तो A को सिर्फ और सिर्फ D डिटरमाइन कर रहा है, E को भी सिर्फ और सिर्फ D डिटरमाइन कर रहा है, H को सिर्फ और सिर्फ D डिटरमाइन कर रहा है, और AH डिटरमाइंस D को भी सिर्फ AH डिटरमाइन कर रहा है। That means this is 1 2 3 4 5 6 and 7, ये 7 फंक्शन डिपेंडेंसी जो है मेरी ये रिड्यूसिबल सेट में है, क्लियर है। तो ये मेरा निकल गया है रिड्यूसिबल सेट। अब मैं रिड्यूसिबल सेट लिख रहा हूं यहाँ पर, A डिटरमाइंस D, A डिटरमाइंस C, E डिटरमाइंस C, D determines A, D determines E, B determines H, and AH determines B. Clear? So this is an irreducible set of function dependency, or you can say this is the minimal set of function dependency or minimal cover, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि मुझे कैनोनिकल कवर चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा, FC is equal to A determines B, A determines C, इन दोनों को मैं मर्ज करके एक ही लिखूंगा, A determines BC, ठीक है। फिर मैं लिख रहा हूं E determines C, E और किसी को डिफाइन कर रहा है क्या, नहीं,
फिर D determines A, फिर D determines E, तो यहाँ पे E भी आ जाएगा, D determines H, तो यहाँ पे H भी आ जाएगा, फिर है AH determines D, तो AH determines D. So this is my canonical cover. This is minimal cover. This is canonical cover. क्लियर है? क्लियर है? दोनों में डिफरेंस बस क्या है कि मिनिमल सेट में राइट हैंड साइड पूरा जो होता है वो सिंगलटन सेट होता है, कैनोनिकल कवर में राइट हैंड साइड वाला रूल जो है वो नहीं रहता. ठीक है, तो राइट हैंड साइड कैन बी अ मल्टीपल सेट्स. ठीक है, सिंगलटन सेट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कैनोनिकल कवर के साथ. क्लियर है? बन जाएंगे क्वेश्चंस? बन जाएंगे क्वेश्चंस? ठीक है, तो एक क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को बोला है इसका 2 सॉल्यूशन मैंने सॉल्व करके भी दिया हुआ है, वो करके देखिएगा, नहीं बनेगा तो फिर पूछिएगा. क्लियर है? चलिए लेफ्ट कर जाइए आप सब लोग. और किसी को कोई डाउट नहीं है ना?